already given, this is almost 1.732. देखो होता क्या है ना, टू वैल्यूज आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, like root 2 and root 3. Root 2 is almost 1.414 and root 3 is 1.732. हाँ, अभी रूट 3 ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन होता तो फिर हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, लाइक रूट 3 इज 1.732. रूट 3 इज 1.732. इसका मीनिंग क्या होता है कि 1.732 दिस स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 3. ठीक है, अभी क्वेश्चन है यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, दिस इज रूट 147 minus 1 upon 4 root 48 and minus square root of 75. ठीक है, so 75 is 25 into 3. Square root of 25 is 5, so this is 5 root 3. Similarly 48, this is 16 into 3. Square root of 16 minus 4. Beta, square root of 16 is 4. Square roots are always positive. Square roots are always positive. Square root of 16 will be plus 4. ठीक है, but यहाँ पे है already negative sign. Now this portion, this is 147 divided by 3, then this will be 3 into 49. Square root of 49? 7. And remaining portion is root 3. इसमें कोई doubt? No, sir. No, sir. ठीक है, now this is 7 root 3, this 4 cancel, so 7 root 3 minus root 3 minus 5 root 3. This is like 7 apples minus 1 apple minus 5 apples, so remaining is root 3. Root 3 already given है 1.732, so final answer is option C. Option C. Correct है. Next question बोलो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में. लाइक क्वेश्चन इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन अगेन स्क्वायर रूट, देन अगेन स्क्वायर रूट, देन अगेन स्क्वायर रूट एंड सो. ठीक है, ये सॉल्व किया था हम लोगों ने इन टाइप 3 infinite terms related questions. Like question is this, find out the value of this square root 2 plus square root 2 plus square root 2, again same portion. ठीक है, तो anyone who can explain this question? Can I? Okay, बताओ, explain करो. Yes, we will consider that root 5 plus root 5 and all as x. बेटा this question explain करना है. Yes, sir. Yes. Root 2 plus root 2 as whole x, and we'll write x is equal to root 2 plus x. हाँ, this portion will be x is equal to square root of 2 plus x, because this portion is also similar to this whole portion. Clear? Okay, so this is x is equal to square root of 2 plus x. Next step. Then square root will go at LHS. It will become x square is equal to 2 plus x. Transposition then, take on the left side. Is x square minus x minus 2. Then by quadratic equation, x square minus 2x plus x minus 2, and then by separating x minus 2 into x plus 1, and correct. The factors will be 2 and minus 1. Okay. Square roots are never negative, so answer will be 2. Okay, done. Same question ये भी था यहाँ पे. Again this is equal to, this is like x is equal to square root of 6 plus x, squares, transposition, left side, middle term split करके factors like जैसा quadratic में करते हैं. और ये हो गया अभी x is equal to 3 और x is equal to minus 2. Again square roots cannot be negative, so final answer is only x is equal to 3. हाँ, ठीक है. Same question ये है. So again, this whole portion will be x, and next step is square root of 5 to 5 plus x. बेटा ये प्लस नहीं है ना, ये into x. Into x. 5 into x is equal to x, squaring both sides. 5x is equal to x square. x square. This x cancel. ये आपको ऑलरेडी बताया, cancellation number of solutions will decrease. So कहीं पे तो हम लोग लिखते हैं this can be
0. हाँ, लेकिन 0 हो नहीं पाएगा क्योंकि बेटा काफी सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, एंड ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये सब तो 0 नहीं होता ना, बिकॉज 0 इज द स्क्वायर रूट ऑफ ओनली 0. So this not possible. Remaining answer and the final answer is only x is equal to 5. 5. option C. C. Correct. Now question number 12. देखो ये भी तुम लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था, रेशनलाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और लिटरली काफी इजी कंसेप्ट होता है. ठीक है, रेशनलाइजेशन में करते क्या है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा दिस क्वेश्चन? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? Sir, can I? विराज यू एक्सप्लेन प्लीज. Yes. So, sir, 1 upon 3 minus root 8. So, for ठीक that, है. you have to multiply it by 3 plus root 8 and 3 plus root 8 upon 3 plus root 8. ठीक है, And then नेक्स्ट the बोलो. answer will come 3 plus root 8 ठीक है. upon 1. And then upon 1 means the same thing. How this one? How this one? Sir, once the multiplication is done, नहीं, मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ वो बताओ, ठीक से बोलो. sir, first we multiplied 3 plus root 8 and 3 minus root 8. And दिस इज लाइक so a then प्लस बी इंटू, a minus b. हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, रूट 8 स्क्वायर इज 8, 9 माइनस 8 इज 1. So Yes. finally this is 3 plus root 8. Similarly next step is this, next step is this, next step is this, और finally यहाँ पे पुट करोगे वैल्यूज, इजीली कैंसिलेशन वगैरह. एक पॉइंट ये माइंड में रखना, थोड़ा समझना इस चीज को, जैसे ये एक्सप्रेशन है रूट 8 प्लस रूट 7. हाँ, एंड दिस साइन इज नेगेटिव, तो काफी लोग क्या करते हैं, दे राइट लाइक दिस, माइनस रूट 8 प्लस रूट 7. दिस स्टेप करेक्ट या फिर ये ब्लंडर है एक? Blunder. हाँ, ये ब्लंडर एक्चुअली. देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आपने माइनस को वहां पे रखा एंड ये बन गया माइनस रूट 8 और प्लस रूट 7. ठीक है, वी शुड यूज Bracket. हाँ, सो दिस विल बी माइनस रूट 8 माइनस Root 7. ठीक है, ये एक सिली मिस्टेक होता है, बाकी काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें. Sir, सो I have माइनस, a question. हाँ बोलो. Sir, in another sum, it was something like 7 upon 3 minus something. Yes. 7 अपॉन 3 माइनस समथिंग तो No, नहीं है. Sir, this one only. ठीक है, ओके. So then, how did that 7 come at the bottom? Like while we cancelled it? इन Yes. दिस स्टेप, Yes, sir. अरे यार सिंपल है ना, अभी तुमने ही तो बताया था, दिस इज लाइक a प्लस बी, a माइनस बी, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 12 स्क्वायर इज 12, रूट 5 स्क्वायर इज 5, 12 माइनस 5 इज 7. 7. हाँ, 7 7 कैंसिल. ठीक है, अब Okay. एक काम करो आप लोग, ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से. दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. So question number 12, the value of this expression. ठीक है, इस पे एक काम करते हैं, नोट्स में सॉल्व करते हैं. So question is this, 1 upon square root of 3.25 plus square root of 25. plus again square root of 4.25 plus 3.25 again, this is 5.25 plus 4.25, and the next step is 6.25 and 5.25. Okay. 6.25 and 5.25. 25. ठीक है,
Again, rationalization, final output will be square root of 3.25 minus square root of 2. 25. 25. 2, 5. Upon Root 3.25 upon root 2.25. बेटा वो तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, तो a प्लस बी ए 1, माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर Upon 3.25 1, sir. अपॉन 1. हाँ, और 3.25 अपॉन 1 minus लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं 2.25. होता है, ठीक है। दिस विल बी 4.25 स्क्वायर रूट माइनस 3.25, Yes. this will be 5.25 minus 4.25, and this will be 6.25 minus 5. 25. 25. this cancel, this plus again अच्छा ये cancel, ठीक है, this plus this minus cancel, so finally remaining terms are square root of 6.25 minus square root of 2. 25. 25. ठीक है, अब एक कंसेप्ट ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस स्क्वायर रूट ऑफ 0.64, तो देखो इसमें करना क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन होता है दिस 0.8 होल स्क्वायर, सो फाइनल आंसर विल बी 0.64. 0.64. हाँ 8 स्क्वायर इज 64। अभी पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं आप वो काउंट करते हो, और स्क्वायर में डबल, सो यहाँ पे पॉइंट डेसिमल राइट साइड में है जस्ट 1 नंबर, स्क्वायर यानी कि 2 नंबर्स शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, तो 1 2 और यहाँ पे डेसिमल अप्लाई करोगे, ये आता है ना सभी को। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है दिस 0.2 होल क्यूब, आंसर विल बी 0.08. 08. 2 क्यूब इज 8, पॉइंट राइट साइड में है जस्ट 1 नंबर, क्यूब है तो 1 का ट्रिपल यानी कि 3 नंबर्स, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा अप्लाई करोगे जीरोस, एंड फाइनल आंसर विल बी दिस 008. हाँ, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, अभी ये है स्क्वायर रूट, पॉइंट के राइट साइड में है 2 नंबर्स, तो स्क्वायर रूट में हाफ नंबर्स, तो 2 का हाफ यानी कि 1, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, सो आंसर विल बी 8. 8. ठीक है। अभी यहाँ पे दिस इज 6.25, 625 इज स्क्वायर ऑफ 25 यानी कि 25, अभी आंसर विल बी 0.25 और 2.5 और समथिंग एल्स, 2.5. ठीक है। ये आता है ना आप लोगों को 2.8 डेसिमल डिसाइड कैसे करते हैं, Yes, sir. Yes, so sir. this is 2.5 minus 1.5 and the final answer is 1. correct. Any doubt? No, sir. चलो एक क्वेश्चन ये ट्राई करो, दिस क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। अच्छा, ये डॉट डॉट क्या होता है, इसका मीनिंग ये जैसे 2 1 3 2 4 3 5 4, फिर आएगा 6 5 7 6, फिर 8 7, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये एक्सप्रेशन 199 तक जाना है, ठीक है। ओके, तो दिस एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, करो ट्राई इस क्वेश्चन को, देखते हैं। अच्छा, फाइनल आंसर काफी सिंपल है, जस्ट एक नंबर है फाइनल आंसर, ठीक है, करो स्टार्ट। Sir, -1. -1, रॉन्ग आंसर। Sir, 9. 9
9 कौन बता रहा है? विराज तुम बोल रहे हो 9? नो सर, No, sir. अनुष्का। अनुष्का, ओके, अनुष्का 9 इज द करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर इसका आएगा 9। डन। ठीक है, अगेन कंप्लीटली रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और लिटरली काफी इजी कंसेप्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज 1/√2 + 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ √2 - 1। ठीक है, डिनोमिनेटर अगेन a + b - b, √2 स्क्वायर इज 2, 1 स्क्वायर इज 1, 2 - 1 इज 1 और रिमेनिंग है जस्ट √2 - 1। -1। ठीक है, सेकंड स्टेप आप रैशनलाइज करते हो, यू विल गेट दिस √3 - √2। √2। थर्ड वन आप रैशनलाइज करते हो, यू विल गेट दिस √4 - √3. then √5 - √4. and at last √100 minus √99. √99 and we have to add all these terms. ठीक है, what should be the next step? This √2, this √2 cancel because this is of plus sign and this is negative. Again similarly this √3 cancel, this √4 again cancelled. तो ये तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है पूरा लाइक दिस। यहाँ पे √5 भी कैंसिल, इसके ऊपर आएगा √99 - √98, तो √99 भी कैंसिल। फाइनली रिमेनिंग टर्म्स आर ओनली √100 माइनस 1. हाँ √100 सबको पता होता है 10 - 1। फाइनल आंसर 9. करेक्ट। तो ये इसका आंसर है। देखने में कॉम्प्लिकेट लगता है, बाकी होता बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और ये आपको देखो आना चाहिए, रैशनलाइजेशन तो आना ही चाहिए। अभी तुम लोग जैसे नेक्स्ट क्लासेस में मूव करोगे तो फिर तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस और अच्छे से क्लियर होगा ना, बाकी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन नंबर, चलो पहले एक काम करते हैं ना, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, we have to find out the value of this expression 1/√12 minus √140, then minus 1/√8 minus √16, then minus 2/(10 plus √84. This value we have to calculate. इस क्वेश्चन में एक्चुअली मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं। लाइक स्टार्टिंग में आप इसको ट्राई करोगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने का। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन 12 minus √140। ठीक है, 140 इज समथिंग इनटू समथिंग। कितना समथिंग इनटू समथिंग? where one something should be perfect square, where one something should be perfect square. So 140 is 20 into 7 7. and 20 is 4 into 5. 7. ठीक है, and square root of 4 is 2. 2. So this is basically square root of 12 minus 2 root 35। 35. हाँ ठीक है, अभी आपको ये ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ 2ab, दिस पोर्शन 2ab सच दैट a square plus b square should be equal to this √7 plus करेक्ट है, √7 minus √5। हाँ 2 into √7 into √5। अच्छा, फाइनल आंसर शुड बी √5 minus √7 और √7 minus √5। √7 minus √5 हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है फाइनली √7 minus √5। ठीक है, नेक्स्ट अभी दिस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस √60. ये सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आएगा फाइनली। दिस एंड देन दिस 10 plus √84।
So Root 8 minus root 60 will be root 5 minus root 3. root 5 minus root 3. Correct. This is 8. This is 4 into 15. Square root of 4 is 2. Root 15. Root 15 is root 3 into root 5. Root 3 square 3. Root 5 square 5. 3 plus 5 8. तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर रूट 5 माइनस रूट 3. ठीक है. नाउ दिस रूट 84 इज 4 into 21. 21 and square root of 4 is 2. so this is 2 root 21 and root 21 is root 3 into Root Root 7. 7. अच्छा इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता दिस देन आंसर विल बी Root 21 into root 1. करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड. So we have this is root 7 into root 3 2ab and the final output will be this root 7 minus sorry root 7 plus root 3. हाँ ये प्लस है माइनस प्लस है. ठीक है. अब करते हैं इसको रेशनलाइज. सो नाउ क्वेश्चन इज दिस 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5 then minus sign 1 upon root 5 minus root 3 then again minus sign 1 upon root 7 plus root 3. अब इसको रेशनलाइज करो. दिस स्टेप दिस स्टेप दिस स्टेप. फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कुछ प्लस माइनस फाइन आंसर देखते हैं कौन पहले बोलता है. करो स्टार्ट करो. ठीक है. करेक्ट. After rationalization, this term will be root 7 plus root 5 upon 2. 2. तो देखो ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज 1 ही आता है. ठीक है. हियर विल बी 2 माइनस साइन. दिस टर्म रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2. दिस टर्म रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 4. हाँ वेरी गुड. करेक्ट है. ठीक है. नाउ एलसीएम विल बी 4. This divide quotient 2 and then 2 will be multiplied with this portion. So this is 2 root 7 plus 2 root 5. again this divided by this 2 root 5. Root This 5 will be plus 2 root 3 or minus 2 root 3. minus 2 root 3. And then this divided by this quotient 1. So as it is portion. So what should be the next term? Minus Minus root 7 plus root 3. Correct. 2 root 5 plus 2 root 5. cancelled. 2 root 7 minus root 7, just root 7. Minus 2 root 3 plus 2 root 3 minus Root 3. 4. This will be the final answer. Root 7 minus root 3 upon 4. ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है यार. क्या मिस्टेक हुआ इसमें? अच्छा एक्चुअली यहाँ पे 2 है ये ऑलरेडी. दिख रहा है आप लोगों को? Yes, This sir. is, हाँ, this is actually 2 यहाँ पे. So 2 here is, this will be also 2. Then यहाँ पे 2. So this cancel 2 times. Okay. ठीक है. Now LCM 2. 2. 2. This portion root 7 plus root 5 minus root 5 minus root 3 minus root 7 plus Root 3. root 5 cancel minus root 3 plus root 3 cancel plus root 7 minus root 7 is also cancelled and the final answer is 2. beta 0.2 na. Yes, sir. So 0.2 is only 0. 0. Correct. Next question try करते हैं.
यार आप लोग ये शीट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वन मोर शीट अभी लेक्चर के बाद पोस्ट करता हूँ, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, और इसका एक डिस्कशन सेशन हम लोग रखेंगे, ठीक है। मैथ्स का जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें कंप्लीटली सेट्स। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस एग्जांपल। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b, देखो काफी लोग डरते हैं यार ये सब स्क्वायर रूट्स वगैरह से ना, लेकिन नहीं डरना होता है, काफी सिंपल होता है, थोड़ा माइंड में क्लैरिटी रखना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, सो इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2b अपॉन square root of a plus 2b minus square root of a minus 2b, then bx square minus ax equals to option A, option B, option C, option D. Option A is B, option B is minus B, option C is 2a minus B, option D is 2a plus B. If x is equal to this expression, square root of a plus 2b plus square root of a minus 2b upon square root of a plus 2b minus square root of a minus 2b, then we have to calculate bx square minus ax. हाँ, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो जैसे ये x के प्लेस पे, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, इसके प्लेस पे जस्ट ये होता है x इज इक्वल टू 2, तो फिर तो x स्क्वायर काफी सिंपल, x स्क्वायर विल बी 4. हाँ, अभी ये 2 जस्ट एक्सप्रेशन नहीं है ना, ये थोड़ा समथिंग अप समथिंग प्लस समथिंग अपन समथिंग माइनस समथिंग फॉर्म है, और ये समथिंग भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। एक सिंपल सा पॉइंट मेरे को ये बताओ, इसके प्लेस पे सपोज करो एक्सप्रेशन होता लाइक दिस 2 रूट 2 और 3, देन दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रूट 2 प्लस 1. 1. हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी ये है a प्लस 2b, a प्लस 2b परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं रेशियोज में, रेशियो एक सेपरेट चैप्टर है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। उसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो देख लेते हैं। तुम लोगों ने नाम सुना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? So No. what is componendo dividendo if a upon b is equal to c upon d, like 6 upon 4 is equal to 9 upon 6. 6 upon 4 or 9 upon 6, same or different? Same. Same. by 2 कैंसिल करोगे, this will be 3 by 2, इसको 3 कैंसिल करो, again 3 by 2, तो 6 upon 4 and 9 upon 6 are absolutely same. इसमें कोई डाउट है? No, sir. So if a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b will be same as c plus d upon, C minus D. हाँ इसको कैसे राइट करना होता है, ये है न्यूमरेटर a, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्लेस करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, a प्लस b अपॉन a माइनस b। सिमिलर एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड, c न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, d न्यूमरेटर प्लस एंड डिनोमिनेटर माइनस, ठीक है। लाइक यहाँ पे भी इसको आप अप्लाई करते हो, सो a प्लस b विल बी 6 प्लस 4 अपॉन a माइनस b विल बी 6 माइनस 4 will be definitely equals to 9 plus 6 upon, 9 minus 6. कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 plus 4 is 10, 6 minus 4 is 2, 9 plus 6 15 upon 9 minus 6, 3. cancel 5 5 is equal to 5. हाँ, तो a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b will be equal to c plus d upon c minus d। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इसका प्रूफ वगैरह वो रेशियोज में देखेंगे, अभी इसको यूज करते हैं। सो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है दिस, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b
minus square root of a minus 2b. This x can be written as x upon 1. 1. Now this portion is, let's say, capital A. This is capital B. This complete is capital C. This complete is capital D. Next step, a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon. C minus D. So what is a plus b? X plus 1. What is a minus b? X minus 1. What is c plus d? Root A plus 2B plus root A minus 2B plus root A plus 2B minus root A minus 2B. हाँ, कैंसिलेशन वगैरह करने के बाद क्या आने वाला है वो बताओ बेटा. दिस प्लस और दिस माइनस तो कैंसिल होगा ना. नाउ दिस विल बी दिस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a plus 2b. ये क्लियर हुआ? अरे यार, दिस इज No, लाइक sir. Can you explain again? बेटा, दिस इज लाइक m plus n upon m minus n ना. This c, this d. So what is c plus d? M plus n plus m. 2m. हाँ, 2m. वही तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2m. And what is c minus d? 2 into root a minus 2b. हाँ, m plus n minus है, sign will get changed. So minus m plus n. m और n cancel, 2m. यानी कि 2 times square root of a minus 2B. This 2 cancel. So this expression is x plus 1 upon x minus 1 is equal to square root of a plus 2b upon square root of. A minus 2B. हाँ, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, अभी sir. मैं हाँ, अभी ये काफी इजी एक्सप्रेशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम लोग. एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट वगैरह है क्या? No. ठीक है. So for removing square root, we have to square both sides. ठीक है. So this will be x plus 1 whole square, and x plus 1 whole square is x square plus 2x plus upon 1. x minus 1 whole square. X square minus Square 2x minus plus 2x 1. plus 1. ठीक है. Right side, this whole square, A plus A plus 2. Plus 2b. this whole square. A A minus minus 2b. ठीक है. अब एक काम करते हैं, फिर से कंपोनेंट डिविजन अप्लाई करते हैं. देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आपको. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि काफी सारे स्टेप्स हैं. इसको मल्टीप्लाई करना इजी है क्या? नहीं, मतलब इजी तो है, लेकिन टर्म्स तो काफी सारे आने वाले हैं ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पेशेंस रखते हैं, अभी नहीं करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. अगेन दिस इज लाइक a, this b, this c, and this d. D. Again a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon. C upon C minus C D. minus D. ठीक है. अभी थोड़ा केयरफुली, व्हाट इज a plus b बोलो. a plus b. Sir, 2x square plus 2. 2x square plus 2. plus 2. हाँ, यानी 2 times x square plus 1. 1. And what is a minus b? Four x. 4. Correct है. What is c plus d? What is c plus d? 2a. What is c minus d? 4b. 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 This 4 cancel, this 2 cancel. Expression है this x square plus 1 upon x is equal to a upon. B. B. हाँ, अभी तुम खुद बताओ. एक तो दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वगैरह भी नहीं पता अभी हम लोगों को, और एक दिस एक्सप्रेशन, ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया है. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी. दिस अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, ट्रांसपोजिशन वगैरह करो, और फाइनली दिस इक्वल्स टू, ये बताना है. करो ट्राई.
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोजिशन, जो तुम्हें करना है करो अभी, और फाइनली दिस की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड minus b. minus b. करेक्ट आंसर। So bx square plus b is equal to ax, transposition left side, transposition right side. Bx square minus ax is equal to minus का b. Option b. B. done, correct. Any doubt? No, sir. ठीक है, तो कंप्लीट हो गए थे वन टाइप टू। टाइप वन इज स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस, टाइप टू रेशनलाइजेशन, टाइप थ्री इनफाइनाइट टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस, और अभी टाइप फोर कवर कर रहे थे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। टाइप फोर इज कंपैरिजन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करें। कंपैरिजन लाइक क्वेश्चन है दिस, देखो ये इजी क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। लाइक क्वेश्चन है 3 स्क्वायर 5 क्यूब 4 टू द पावर 4, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। एक काम करते हैं, इसमें ये सब भी लिखते हैं। 7 स्क्वायर, लेट्स से दिस इज डी, 2 टू द पावर 8, दिस इज लाइक डी, ठीक है। आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं, असेंडिंग कर, डिसेंडिंग कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ग्रेटेस्ट टर्म इज 4 root 4. 4 power 4. A is basically 9, B is 125, C is 250, 256. D is 49. 49, and E 128 or something else. बोलो। Sir, it is 256. हाँ, it Yes. is 256. Okay. So maximum terms are, greatest terms are C and D. E. E. E, sorry. इससे least B, then D and then A. ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी क्वेश्चन है? क्योंकि इन सबके ऊपर पावर नेचुरल नंबर्स में है। 3 स्क्वायर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 क्यूब ये इजीली कैलकुलेट कर लोगे। इसके प्लेस पे ये होता 5 क्यूब रूट, तो ये इजीली कैलकुलेट होता है क्या? No, sir. हाँ, दिस इज रेशनल एंड दिस इज डेफिनेटली, Irrational. Irrational. हाँ, इसके प्लेस पे ये होता है ना 125 क्यूब रूट, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। दिस इज क्लियरली 5. ठीक है। तो 5 क्यूब रूट ये एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कितना आने वाला है। सो 5 क्यूब रूट इज ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग। 5 क्यूब रूट ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग। 2 point something. No, sir. 1 point something. 1 point something. 1.66. हाँ, 2 पॉइंट समथिंग तो पॉसिबल ही नहीं ना भाई। 0 क्यूब कितना होता है? 0, 1 क्यूब Sir, 2 point something will be root 5. बेटा रूट 5 नहीं है ये क्यूब रूट है, 5 हाँ, क्यूब like- रूट। Yes, yes, yes. अच्छा हाँ, रूट 5 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। Yeah. ओके, 2 क्यूब इज 8. 8। तो अभी 1 पॉइंट समथिंग क्यूब, वो सारे नंबर्स 2 3 4 5 6 7 तक बनने वाला है ना। Yes. हाँ, सो 5 क्यूब रूट इज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग। ये क्लियर? 1 point something. हाँ, लाइक क्वेश्चन है दिस, थ्री Sir, so फोर्थ रूट। हाँ बोलो। sir, so in this, do we have to do estimation or? देखते हैं। जो तुम्हारा माइंड परफेक्टली वर्क करता है ना वो करो। तुम परफेक्ट एस्टिमेट कर देते हो तो कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन सपोज करो कई सारे टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, एंड ऑल 5 टर्म्स आर लाइक 1 पॉइंट समथिंग। देखो जैसे क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन है दिस, लाइक दिस क्वेश्चन है, तो इसमें नहीं आएगा इशू। लाइक ये है क्वेश्चन √3, ठीक है, ओके, तो √3 इज 1 पॉइंट समथिंग, इसका ऑलमोस्ट एस्टिमेशन भी देख लेते हैं। दिस इज 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग, 1 point something. 1 point point something. something. ठीक है। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, सॉरी इसके प्लेस पे नहीं, सेकेंड टर्म √5, √5 इज ऑलमोस्ट 2 point something. Point something. 2 पॉइंट समथिंग। एक है दिस टर्म 28 क्यूब रूट, so 28 cube root is almost 3 point something. Point 3 something. point something, because 3 क्यूब होता है 27। अभी आपको बोलते हैं कि इनको अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, सी ग्रेटेस्ट देन बी देन ए, ओके। लेकिन सपोज करो इसके प्लेस पे क्वेश्चन है दिस, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, this is 3 to the power 1/4. 10 to the power 1/6. 25 to the power 1/12. 1/12। तो इनमें तुम एस्टिमेशन इजीली कर पाओगे क्या, बोलो? ऑल विल बी डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग ही है, बिकॉज 1 to the power 12 is 1 and 2 to the power 12 is, ये आता है 4096। तो 1 से 4096 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका 12th रूट विल बी डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग। तो ये नंबर भी 1 पॉइंट समथिंग है, दिस इज आल्सो 1 पॉइंट समथिंग, दिस इज आल्सो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अभी तीनों नंबर है 1 पॉइंट समथिंग, तो तुम एस्टिमेशन से करते हो तो तुम्हें और क्लियर करना पड़ेगा 1 पॉइंट समथिंग कितना। सपोज करो ये आ गया 1.2345, ये आ गया लेट्स से 1.2387, और ये आ गया 1.238, ये भी ऑलमोस्ट इतना आ रहा है। तो तुम इसके बाद वाला डिजिट देखोगे, फिर ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इतना एस्टिमेशन तो नहीं करते यार हम लोग कभी भी, क्योंकि 12th रूट है वो, सेकेंड रूट या थर्ड रूट या फोर्थ रूट नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट क्या होता है, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, हाउ टू कंपेयर दीज नंबर्स, दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर। प्रॉब्लम ये है कि ये पावर रेडिकल्स हैं, 1/4 1/6 Sir, is it okay if we compare the numbers. fractions? ठीक, नहीं कम फ्रैक्शंस भी है ना, बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो इसका मेथड क्या होता है, बेसिकली आप 4, 6 और 12 इनका एलसीएम कैलकुलेट करते हो। क्या कैलकुलेट करते हो? LCM. हाँ, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 12। एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 12 विल बी 2. 12। हाँ, अभी इस 12 को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तीनों नंबर्स में, इस जगह पे से, ठीक है, लाइक दिस। स्टेप 2 हो गया ये, 3 to the power 1/4 into 12, 10 to the power 1/6 into 12, 25 to the power 1/12 into 12. Now this is 3 to the power 3. 3, this is 10 square, and this is 25 to the power 1. Okay, now greatest term will be A, B or C? B. Then A and then C. हाँ, ओके, फर्स्ट बी देन ए एंड देन सी। तो ये एक सिंपल मेथड है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं उनमें जो डिनोमिनेटर है, बेसिकली आप उसका एलसीएम कैलकुलेट करते हो और फिर उनको पावर से मल्टीप्लाई। बेनिफिट क्या होता है इसका? ये बेनिफिट है कि जो पावर्स है ना वो भी नेचुरल नंबर्स में है,
और नेचुरल पावर्स इजीली कैलकुलेट होती हैं, बिल्कुल इजी। Sir, but Any if doubt? numerator is not 1, then कोई इश्यू नहीं है। सपोज करो ये ऐसे होता, इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म और लिख देते हैं ना, लाइक क्वेश्चन है ये 7 to the power 3/2। अभी ओके है? yes. सो नेक्स्ट 7 to the power, यहाँ पे ये भी लिखो अभी। नाउ एलसीएम इज ऑल्सो 12। 12. सो ये कैंसिल 18. 6 times and this will be 7 to the power 18। बहुत बड़ा नंबर है, so greatest will be D. D. D। तो कोई इश्यू नहीं, क्लियर? Yes, sir. And sir, what if it is like 1/4√3? पावर 1/4√3, Yes. पावर 1/4√3 ऐसा बोल रहे हो? No, sir, not like that. Like 1/√3, like that. मतलब यहाँ पे एक टर्म हो रहा है ऐसा, लाइक 1/4√3, ये बोल रहे हो क्या? Yes. तो इसमें तो कोई इशू नहीं है बेटा, ये सबसे तो लिस्ट होगा ना, क्योंकि 4√3 इज 1 पॉइंट समथिंग एंड 1/1 पॉइंट समथिंग विल बी 0 पॉइंट समथिंग। तो ये नंबर है कितना है बोलो? That will be the least. 0 पॉइंट समथिंग, तो ये सबसे लिस्ट है भाई। And sir, एक what? तो ये कंपैरिजन है। और हाँ सर बोलो। अगर सभी वैसे रहे तो? हाँ, तब भी कोई इशू नहीं है भाई। तुम एक काम करो, जैसे इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, अभी ओके है? विराज यही क्वेश्चन था क्या? Yes, sir. अरे तो कोई इशू नहीं है ना बेटा। इफ न्यूमरेटर सेम, if numerator same and if denominator increases, then overall value will be decrease ना भाई। डिनोमिनेटर आप जितना इंक्रीज करोगे ओवरऑल वैल्यू उतना क्या होगा? Decrease. Decrease. लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, दिस इज ए बी सी एंड डी, स्मॉलेस्ट इज 1/5. D. ठीक है। तो लेट्स से दिस नंबर इज ए, this complete number is A, this complete number is B, this complete number is C, this complete number is D। ठीक है, जस्ट अभी हम लोगों ने ट्राई किया था स्टार्टिंग में, आप पहले डिनोमिनेटर्स वगैरह कंपेयर करो। सो डिनोमिनेटर्स आर 3 to the power 1/4, 10 to the power 1/6, 25 to the power 1/12 and 7 to the power 3/2। 2. Step 1, LCM of 4, 6, 12 and 2 कितना होता है LCM बोलो? 12. 12. हाँ, तो तीनों पावर्स में जितने भी पावर्स हैं वहां पे अवेलेबल, उन सब में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सेम this 3 times, this 2 times, this 1 time and this 6 times. 3 cube is 27, 10 square is 100, 25 to the power only 1, 25 and this is 7 to the power 18. 18. 18। ठीक है, so 7 to the power 18 greatest, then 100, then 27 and then 25। फाइनल आंसर ये सब 1/, में था।
ठीक है, तो दिस ग्रेटेस्ट, इसका 1 विल बी मिनिमम, सो स्मॉलेस्ट इज 1/7. 1/25. बट स्मॉलेस्ट 1/7 or 80. हाँ, ठीक है, डी मिनिमम है, देन 100 यानी कि 100 था ये बी, and then 27 related with this number a, ठीक है, and the and greatest term is C. 25 यानी कि सी। ये इसका, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हम लोग, डिसेंडिंग होता देन आंसर विल बी दिस सी ए बी एंड D. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, एक ये क्वेश्चन ट्राई करो। x is equal to 9 cube root, y is equal to 11 to the power 1/4 यानी 4th root, and z is equal to 17 to the power 1/6, arrange in ascending order। ये क्वेश्चन है। Sir, we have to send answer in chat box. अनुष्का भी डिस्कस ही करते हैं, डिस्कस करते हैं। Yes. Okay, so your answer is C, B, A. z y Z x। is smaller than Y is smaller than X. Okay, so smallest value is z and the greatest value is x, ठीक है। Can you explain this question? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। So step 1 is LCM of 3, 4 and 6 will be 12. correct है। Next step Then multiplying powers with 12, 9 power 1/3 into 12, 11 power 1/4 ठीक है, into 12, and 17 power 1/6 into 12. ठीक है। And it will be This will be 9 9 power to the power 4, 11 11 power to the 3, power at 17। 17 power 2. हाँ, ठीक है। 17 square is 289। This 9 to the power 4, ये तो काफी बड़ा आने वाला है ना। And this is Yes. 1331। This is 81 into 81, 81 square 1 6561. 166561, correct है। And we have to arrange in ascending order। ये थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन में ascending order है या फिर descending। ascending में starting में lowest, and that will be 289 यानी कि z, then y and then x। this will be the final answer। clear? Yes, sir. Next, this question आदर्श सर्ट्स के लेक्चर्स गो थ्रू किए आपने? Yes, sir.
नहीं, आदर्श, आदर्श, नॉट अनुष्का, आदर्श। ठीक है, आई थिंक आदर्श इज द न्यू स्टूडेंट। देखते बात। This question try करो। Again almost same question है। This is 4 to the power 1/3, 2 to the power 1/2, 16 power 1/6, 5 power 1/4। आदर्श, if you have any doubt तुम बोल सकते हो बेटा ना। So step 1 is LCM of 3, 2, 6 and 4 will be 12. काफी इजी क्वेश्चन है, बस ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 16 to the power 1/6 into 12, 5 to the power 1/4 into 12. This is 4 to the power 4, 2 to the power 6, 16 square and 5 to the power 3. ठीक है। 5 cube 125, 16 square 250, 6. 4 to the power 4 यानी 4 square का भी square, again 256 and 2 to the power 6 is 64. 4. ठीक है। So lowest term is A, B, C or D, B. then D. and A is equal to is equal C. to C. This will be the final answer. Clear? Yes, sir. Okay. तो देखो ये कंपैरिजन में बेसिकली 2 टाइप से क्वेश्चंस है। लाइक एक तो ये क्वेश्चन जिसमें आप पावर्स वगैरह के साथ डील करते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है लाइक दिस, x is equal to √7 minus √3 and y is equal to √5 minus 1, compare x and y। यहाँ पे पावर्स जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि पावर्स को आपको देख के ऑब्जर्व करके एलसीएम और फिर मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। √7 इज ऑलमोस्ट, अगेन मेथड 1 तो वही है कि एस्टिमेशन कर लो कि ऑलमोस्ट कितना वैल्यू आ रहा है। कई बार एस्टिमेशन में वैल्यू सेम ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट, तो फिर हम लोग कुछ और सोचते हैं। लाइक यहाँ पे √7 इज ऑलमोस्ट 1 point something, 2 point something और 3 point something। 2 point something. √3 is almost 1 point something, 1.732, ऑलमोस्ट अभी 1 point something होता है। √5 is almost 2 point something. -1, 2 point something -1 1 point something. and 2 point something minus 1 point something। 1 point something. 1 point something. नहीं, ऐसे थोड़ी है। 2 point something minus 1 point something can be 0 point something also, like 2.2 minus 1.8, this is 1 point something or 0 point something। 0 point something. हाँ, तो 2 point something minus 1 point something can be anything, 0 point something or 1 point something। 2 point something तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो या तो इसको और एक्यूरेट कैलकुलेट करो, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैलकुलेट करके, दिस इज, और प्रिसाइज करते हैं इसको। 2 पॉइंट कितना बोलो, 2.5 और 2.6 और 2.7। √7 is 2.5 और 2.6 और 2.7। 25 square is 625 and 26 square is 676. 76. 27 square। 729. हाँ, तो ये 2.6 to 2.7 में आएगा, ये क्लियर। Yes, sir. एंड दिस इज 1.732। 732. डिफरेंस ऑलमोस्ट कितना आने वाला है, डिफरेंस 2.6 सपोज करो कंसीडर करते हैं, तो अभी डिफरेंस कितना आने वाला है बोलो। 2.6 और 1 something.
0.9 समथिंग आने वाला है डिफरेंस, ठीक है। √5 थोड़ा एक्यूरेट बताओ, 2 पॉइंट समथिंग कितना, 2.4 और 2.5 और 2.3 या फिर 2.2? 22 square is 484. 484. and 23 square, 529. so this is almost 2.2 something. ये clear? Yes, sir. -1 almost. 1.2 something. Definitely y greater than. X. हाँ, तो एक मेथड तो ये कि वैल्यूज एस्टिमेट करो, प्रिसाइज करो और फिर चेक करो, बाकी ये भी कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन है √7 माइनस √3, सेकेंड नंबर या सेकेंड टर्म इज √5 - 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं इसको। देखो वैसे तो रेशनलाइजेशन जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है ना, उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए करते हैं, लेकिन और भी एप्लीकेशन है रेशनलाइजेशन की। Like for rationalization, you will multiply and divide with √7 plus. √3. Again in Upon numerator, √7 plus √3. 4 upon √7 plus √3. Similarly, यहाँ पे भी rationalization √5 plus √1, and this expression is a minus b a plus b, a square minus b square, यानी कि 4 upon √5 plus 1. 1. ठीक है, ओके अच्छा एक कंसेप्ट ये बोलो मेरे को, लाइक a greater than c, b greater than d, a is greater than C. and b is greater than, D. ठीक है, थोड़ा सोच के बोलना। देन ऑलवेज स्टेटमेंट 1, a प्लस b ग्रेटर देन c प्लस d, ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट 2, a माइनस b ग्रेटर देन c माइनस d, ट्रू फॉल्स, ऑलवेज के लिए पूछा। सो व्हाट अबाउट दीज टू स्टेटमेंट्स, फॉल्स और ट्रू? So first one true. सेकेंड, False. एग्जाम्पल? It can be negative. नहीं, नेगेटिव का तो बेटा इशू नहीं है अभी, अभी जस्ट हमको यहाँ पे स्मॉलर और ग्रेटर चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करना है। देखो यार, तुम एक थोड़ा सा चीज समझने का ट्राई करो, जब डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस का मतलब माइनस साइन, तो थोड़ा सा हमें और केयरफुल रहना होगा। लाइक पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, आंसर विल बी डेफिनेटली, Positive. बट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। 0 और पॉजिटिव, तीनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। वैसे ही सपोज करो a ग्रेटर देन c और b ग्रेटर देन d, मतलब a c से बड़ा है और b d से बड़ा है, तो इन दोनों का समेशन भी 100% इन दोनों के समेशन से ग्रेटर ही आने वाला है। लाइक Yes. स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, लेकिन a माइनस बी ग्रेटर देन c माइनस डी ये होना कंपलसरी नहीं है। तुम कोई भी नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देख सकते हो। सपोज करो a लेते हैं Sir- 100, हाँ बोलो। So we can take A2, C1, A2, B4, C1, एक सेकेंड, C4 एंड D, D2. D2, ठीक है। 2 greater than 1, 4 greater than 2. Now A minus B is Minus 2. -2. and C minus D is, -1. हाँ, तो -2 greater than -1 नहीं होता है, स्मॉलर होता है। क्लियर? Yes, sir. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। देखो कोई और एग्जांपल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। लाइक 100 greater than 95 और 84 greater than 75, ठीक है। डिफरेंस कितना रहा है बोलो? 16. 16। डिफरेंस 20. 20. हाँ, तो 16 greater than 20 नहीं होता,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि चीजों को आप जो भी नंबर्स वगैरह है ना, उनको एडिशन के फॉर्म में लाने का ट्राई करो। लाइक यहाँ पे जो नंबर्स थे ना, वो डिफरेंस के फॉर्म में दिख रहा है, Yes, sir. और यहाँ पे नंबर सभी Positive. समेशन के फॉर्म में है। ठीक है, √7 प्लस √3 एंड √5 प्लस √1 या 1। √7 डेफिनेटली ग्रेटर देन √5, Yes. √3 डेफिनेटली ग्रेटर देन, 1. 1. हाँ, तो समेशन ज्यादा ही आने वाला है। इसके प्लेस पे डिफरेंस होता ना तो कमेंट नहीं करते डायरेक्ट। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो फाइनल आंसर दिस एंड दिस का कंपैरिजन बोलो। 4 upon √5 plus 1 is greater than 4 upon √7 plus √3. नहीं बेटा, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ओवरऑल वैल्यू, So then the next one will be greater. हाँ, सो x लेस देन Y. y विल बी ग्रेटेस्ट एक्चुअली, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर कम है ना, और दोनों में न्यूमरेटर सेम ही है। तो न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर आप इंक्रीज करते हो, वैल्यू डिक्रीज होता है। ये इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीजिंग। सो फाइनल आंसर शुड बी x लेस देन y। क्लियर? Yes, अगेन sir. क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं, वो शीट्स में सेंड करता हूँ आज एक और सेट्स का, वो ट्राई करना, तो मैं मिल क्वेश्चंस। जस्ट मेरा पर्पस यहाँ पे आइडियाज प्रोवाइड करना है कि एक आइडिया तो ये होता है कि आप पावर्स के साथ डील करते हो, कुछ एलसीएम मल्टीप्लिकेशन देन चेक कर लेते हैं, और एक मेथड ये भी है डील करने का कि यहाँ पे रेशनलाइजेशन ट्राई करो, टर्म्स को एडिशन के फॉर्म में लाने का, और फिर कंपेयर करो, क्योंकि कंपैरिजन इजी होता है अभी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? No, sir. दिस क्वेश्चन ट्राई करो। Try this question and send answer on chat box. श्रावणी 2√5 बेटा ऑप्शंस है आपके सामने, इसमें सेलेक्ट करना है। Sir, is my correct? ऑप्शन बी, ऑप्शन ओके, ऑप्शन डी चेक। संस्कार ऑप्शन डी।
So anyone who can explain this question? Sir, shall I? हाँ बोलो. संस्कार, very good. बताओ. Sir, first we have to rationalize the number. Correct है. Square No root issue. 5 plus square root 3 upon square root 5 minus square root 3 multiply by square root 5 plus square root 3 upon square root 5 plus square root 3. And denominator will be finally 2. correct है. Next बोलो. अच्छा इसको और simplify करते हैं. So square root 5 is and square root 5 square is 5 plus 3 8. 8 upon 2 is equals to 4. ऐसे थोड़ी होता है यार. 5 this is like a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. यानी 2 root 15. 5 plus 3 is 8 plus 2 root 5 upon 2 यानी 4 plus root 15. 15. हाँ अभी b सिंप्लीफाई करो. root 5 minus root 3 upon root 5 plus root 3 multiply and divide with root 5 minus root 3, and then this expression will be root 5 minus root 3 whole square upon 2. Again a minus b whole square, a square plus b square minus का 2 root 5 into root 3 यानी कि root 15 upon 2. 5 plus 3 8 upon 2 is 4. This 2 cancel यानी कि 4 minus root root 15. 15. ठीक है. Now we have to calculate just addition. Answer कितना है बोलो finally. 8. 8. Correct. Sir, Option D. can we do directly that by adding Yes, or sir. simplifying? हाँ हाँ वो भी Then कर we सकते can हो. वो take भी कर सकते LCM and then it will be easy to solve. हाँ वो भी कर सकते हैं. Like rational expressions ना. Yes, sir. हाँ ये भी कर सकते हो. कोई इशू नहीं. डायरेक्ट भी कर सकते हैं. root 5 plus root 3 upon root 5 minus root 3 plus root 5 minus root 3 upon root 5 plus root 3. LCM 2. 5 minus root 3 into root 5 plus root 3. तो जैसे रेशनल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना सेम. डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर root 5 plus 5 plus root 3. हाँ और वो मल्टीप्लाई होगा विद दिस. सो दिस विल बी root 5 plus root 3 होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस एक्स्ट्रा फैक्टर root 5 minus Root 5 minus root 5 minus root और वो 3. मल्टीप्लाई करोगे अब दिस न्यूमरेटर. सो दिस विल बी root 5 minus root 3 होल स्क्वायर. वेरी गुड यार. ऐसे कर सकते हो. बेस्ट है. कोई इशू नहीं. और फिर इसको ओपन तो ओपन करने पे ये आता है 16/2. फाइनल आंसर इज 8. करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अच्छा एक क्लासिक क्वेश्चन करते हैं ना. ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं. x is equal to 3 plus 3 cube root plus 3 to the power 2 by 3. अच्छा पॉइंट और है ना. 3 to the power 2 by 3. This can be written as like this 9 to the power 1 by 3. because 3 square is 9. power 1/3. So x is equal to 3 plus 3 cube root plus 9 cube root या फिर 3 to the power 2/3. Then find the value of x cube minus 9x square plus 18x minus 12. Option A, B, C, D. 0, 1, 2 और 4. इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं. 12, 14, 15 और 18. So x is equal to 3 plus cube root of 3 plus 9 का cube root. Then we have to find out the value of this expression. Again क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझने का ट्राई करो. इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है this 3 plus 8 cube root plus 512 cube root. तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है. This is simply 2. 2 और ये है सिंपल कितना 8. So x is equal to 3 plus 2 plus 8 यानी 5 plus 8 यानी कि 13. 13. ठीक.
और 13 को आप यहाँ पे पुट करोगे 13 क्यूब 13 स्क्वायर जो भी होता है वो सब है ना 13 स्क्वायर 169 13 क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है। अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये है 3 क्यूब रूट। 3 क्यूब रूट पता होता है क्या आपको? No, sir. हाँ, सो 3 क्यूब रूट इज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग, इरेशनल है, नहीं पता होता। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है और वो है क्या वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। x is equal to 3 plus 3 cube root and 3 to the power 2 upon 3 ठीक है। फाइंड करना एक्सप्रेशन दिस, और इस एक्सप्रेशन में है क्यूब, सो बेसिकली आपको क्यूब फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे ठीक है। अभी होता क्या है ना, a प्लस बी होल क्यूब ये पता होता है हम लोगों को, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते हैं। सो वी कैन यूज मैक्सिमम a प्लस बी होल क्यूब और a minus b whole cube. For that, take this 3 on the Left side. using transposition. So this will be x minus 3 is equal to 3 cube root plus 3 to the power 2 by 3. 2 by 3. Now cube both sides. And this is x minus 3 whole cube is equal to 3 to the power 1 upon 3 plus 3 to the power 2 upon 3 whole cube. ये clear? Yes, Now sir. tell me what is a minus b whole cube. ये already कर चुके हैं हम लोग है ना. What is a minus b whole cube? A cube minus B cube minus 3B in bracket A minus B. a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b, and what is a plus b whole cube? A A cube cube plus B cube plus 3AB in bracket A minus A plus B. हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑल साइंस आर प्लस एंड यहाँ पे ऑल साइंस आर माइनस। इसका एक फॉर्म ये भी होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस B cube. B. b क्यूब। तो अभी तो इस फॉर्म को यूज करते हैं ठीक है। अगेन दिस इज लाइक a माइनस b होल क्यूब वेयर a इज x b इज 3। सो ओपन दिस एक्सप्रेशन, बताओ बोलो। X cube minus X cube minus 27 minus minus 9x 3ab 3 into x into 3 यानी कि minus 9x into A min X minus 3. minus 3. correct है, on the right side. This cube is 3. चलो लिखता हूँ मैं proper ना, this cube plus then this cube B square. then 3a and b and a plus b। ये जो irrational terms है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। and now this can be written as again sorry X x minus minus 2 नहीं है बेटा, ये x minus 3 था, 3. x minus 3 ठीक है। आप जस्ट इनको ओपन करो पहले ना, this 3 this 9. this term 9. this is like a to the 9. power m into a to the power And M n plus a to N. the power n plus n। हाँ, so 3 to the power 1 upon 3 plus 2 upon 3 यानी कि 3 upon 3 ठीक है। नेक्स्ट है x क्यूब माइनस 27 दिस मल्टीप्लाई माइनस 9x square Minus This- 27x. plus plus 27. 27 हाँ, and on the right side 3 plus 9 3 into 3 9 into bracket X minus 3. ठीक है, ट्रांसपोजिशन वगैरह इन सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। सो x क्यूब then coefficient of x square is minus 9x square। now coefficient of x, this is 27x and this is 9x. left side minus 9x 27x minus 9x 18x. 18x. now constant terms,
कांस्टेंट इज -27 और यहाँ पे है कितना बोलो, +12 एंड दिस 27. -27 -27 1. कैंसिल बेटा, वो Zero. जीरो वाला कैंसिलेशन, वो डिफरेंट टाइप का कैंसिलेशन है ना, वो जीरो वाला कैंसिलेशन। सो फाइनली x³ - 9x² + 18x इज इक्वल टू 12. ऑप्शन A. ऑप्शन। काफी क्लासिक क्वेश्चन होता है ये, तुम्हें अपने स्टेट स्कूल बुक्स में भी मिलेगा कहीं तो क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली इन 9th और 10th क्लास, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बोलो। No, sir. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन यू कैन गो ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जस्ट। Find the cubic equation of which one root is x is equal to this. ये क्वेश्चन है। So basically we have to determine a cubic expression like this. ये भी एक cubic expression, cubic का मतलब 3 डिग्री expression, ठीक है, of which one root is this. अभी यहाँ पे just 2 टर्म्स है, 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म। सपोज करो एक थर्ड टर्म और होता तो उसको स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आते हैं। क्लियर? अभी डायरेक्ट x is equal to this is 7 + 4√3 power 1/3 and this is 7 - 4√3 power 1/3. this is like capital A, this is like capital B. So x is equal to a to the power 1/3 plus b to the power 1/3. cubing both sides. x³ is equal to, again this is like एक काम करते हैं, इस पूरे को बोल देते हैं, this a this b. So x³ is equal to a³ plus b³ plus 3ab AB in bracket Into- A³ minus B. a plus b is clearly X. ठीक है, x³ is equal to a³, this cube is 7 + 4√3. correct है, b³ is 7 - 4√3. now 3 times ab, ठीक है, this and this. अच्छा ये बताओ like a to the power 1/3 into b to the power 1/3, this can be written as ab power 1/3. and it is this 7 + 4√3 into 7 - 4√3, like a plus b minus b, a square minus b square. 7 square is 49. 49. 4√3 square is 48. 48. 49 minus 48, 1. 1 cube root 1 cube root. 1, ठीक है, और ये है x. बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 4√3 कैंसिल, सो x³ is equal to 7 + 7 यानी कि 14 and 3x. Finally the cubic equation is x³ minus 3x minus 14 is equal to 0. 0. ये इसका आंसर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सेट्स कंप्लीट हो गया है। शीट अभी अपलोड करता हूँ ग्रुप पे। वन शीट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सेकंड शीट अपलोड करता हूँ। इसके अलावा आपको डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वो शीट भी लास्ट वीक में पोस्ट किया था, वो कंप्लीट करके रखो। डाउट्स है डिस्कस करो, ठीक है। नेक्स्ट हम Yes, स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट। सर मैं हाँ, थोड़ा बोलो। डिस्कनेक्ट हुआ था, तो आप ये वीडियो लेक्चर कभी भेजने वाले हैं?
यार ये अभी मैं बस पहले नोट सेंड करता हूँ, फिर इसको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पे अपलोड पे लगाता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इट विल टेक अराउंड 1 आवर। ठीक है, ये Okay, जस्ट sir. हाफ एन आवर में भी हो जाएगा ना। Yes, sir. ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay. Bye, sir. Sir.